will present the Guard of Honor. श्रीमान सम्मानगढ़ आपके निरीक्षण के लिए हजरत जय श्रीमान. The Guard of Honor is being presented by 4 contingents of the National Cadet Corps led by Under Officer Shubham Rawat of Delhi Directorate. The Honorable Prime Minister is piloted by Under Officer Anshu Som of Delhi Directorate on his left and an Under Officer Pooja Rathore of Rajasthan Directorate on his right. The Army Wing led by Under Officer Himanshu Sahu of Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. The Naval Wing contingent is led by Cadet Mohit Nanath of Rajasthan Directorate. After the Naval Wing, the Air Wing contingent led by Under Officer Anand Singh of Delhi Directorate. And the Girl Wing contingent of the NCC led by Under Officer Ankita Rani of Delhi Directorate. The Guard of Honor is accompanied by military band of Army Service Corps North with the bandmaster Naib Subedar Pravendra Singh playing the tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And after inspecting the Guard of Honor, Prime Minister being escorted to the saluting dais, he will review the march past by the various NCC contingents. And along with the cultural performance, the NCC cadets today will have the delightful opportunity to present before the Prime Minister their courage, their contribution to the cause of this great nation. Just Smart God! March up! March! March! Smart God! The Nasser! That's us! So as the Guard of Honor marches off, in the event today, Prime Minister will also be distributing awards to the meritorious NCC cadets and then address the gathering here at the Karyappa Parade Grounds. सम्मान गार्ड के पश्चात चारों विंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा गर्ल्स विंग मैदान से बाहर जाते हुए युवा शक्ति राष्ट्र का स्तंभ, गहन ऊर्जा एवं महत्वाकांक्षा से लबालब माननीय प्रधानमंत्री जो स्वयं एक एनसीसी कैडेट के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं, युवा वर्ग के लिए सदैव एक प्रेरणा रहे हैं।
वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। And there we see, nearing the saluting dais, cavalry, where soldier warriors are mounted on horseback. So we see 5 horsemen marching in front of the dais. And this mounted section of horses is led by Under Officer Dharamveer, proudly bearing the national flag as he is mounted on the horse called Vajra. Of all the sights of battlefield, there was none more inspiring than that of a cavalry unit in full glory of its charge. And following Under Officer Dharamveer are 4 horses with their flag bearers. On the extreme right, you see Under Officer Veer Abhimanyu Chipper on Tehzeeb, proudly bearing the army flag as the Prime Minister looks on. And next to the Under Officer is Corporal Anjali, mounted on Tufan and bearing the Indian Navy flag. The Indian Air Force flag was borne there by Under Officer Neeru Tawar on Tushar, and Sergeant Quartermaster Ankit Tawar bearing the NCC flag riding on Messi. Ladies and gentlemen, closely following are the 17 marching contingents. As you see on your screen, moving towards the saluting dais. That's the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. Chests swelling with pride, heads held high, smartly marching contingent, Andhra Pradesh and Telangana, led by Senior Under Officer P. Satish Kumar Reddy, placard bearer Senior Under Officer Adnan Pasha. Smart salute to the Honorable Prime Minister. Following close behind is Bihar and Jharkhand, led by Senior Under Officer Shivanandan Kumar and Senior Under Officer Abhishek Kumar. And that's the Delhi contingent, led by Senior Under Officer Rahul and the placard bearer Sergeant Rajiv Nayak. Well, these are the mellifluous tunes coming from the brass band, Bombay Engineering Group, Center Kirki, led by Naib Subedar G.J. Binu, and the band tune, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. लौह पुरुष की रूहानी मिट्टी की खुशबू बिखेरता अगला मार्चिंग कंटिंजेंट गुजरात से कंटिंजेंट कमांडर कैडेट ठाकुर पार्थ, प्लेकार्ड बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर जडेजा हर्षद सिंह. गुजरात का दस्ता स्मार्ट सल्यूट माननीय प्रधानमंत्री को गौरवान्वित पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए इसके ठीक पीछे मां भारती का मुकुट कहे जाने वाली पावन धरती से अगला मार्चिंग कंटिंजेंट जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख. कमान संभाली है कैडेट अमन सिंह ने, प्लेकार्ड कैडेट मनमीत सिंह. Well, that's the Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Somarth Gajanan Ghatke, and the bearer of the placard, Senior Under Officer Purvi Gowda KM. Perfect synchronization. There are 17 directorates of the National Cadet Corps, and when you look at the NCC flag, you'll actually find 17 petals which are demonstrating them. Here comes the Kerala and Lakshadweep Directorate, ably led by Under Officer Rishikesh BS, and a placard borne by Junior Under Officer Atul Krishnan. Swing in their colorful military regalia is the military band from
Army Medical Corps led by Naib Subedar Rajendra Singh playing Kadam Kadam Badhaye Ja. Khushi ke geet gaye ja. And Colonel, what a moment of happiness for the young cadets here. बिल्कुल अमित जी, अगर आप देखें 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन पूरा राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है और ये उनकी आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत था. Absolutely, the graceful and enchanting patriotic song was the marching song of the Azad Hind Fauj. Here comes Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. इसकी कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर यदुवेंद्र सोलंकी ने. प्ले कार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर राम प्रताप राजपूत. आंखों में इंद्रधनुषी सपने, हर मैदान फतेह करने का जज्बा. Prime Minister himself has been an NCC cadet, and so has been the Honorable Defence Minister. ओडिशा निदेशालय कैडेट आकाश कुमार नायक की कमान में बोर्ड मार्कर कैडेट सुमन गौड़ा चुस्ती फुर्ती से आगे बढ़ते हुए. कंधों पे आसमान उठाकर चले हैं हम, सूरज हथेलियों पे उगाकर चले हैं हम. अबल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के दस्ते की कमान कंपनी सार्जेंट मेजर अंशुल महंत के हाथों में. प्लेकार्ड बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर अतुल वर्मा. Well, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh were the champion directorate last year. Who will get the honours today? We'll get to know as we now see the Rajasthan directorate. Ably led by Senior Under Officer Deepak Dhobi and the placard bearer Cadet Manaswini Sodha. In a splendid formation. Next we have contingent from Tamil Nadu, Puducherry और उससे पहले पाइप एंड ड्रम बैंड जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का नायब सूबेदार सुखदेव राज कदम कदम बढ़ाए जाके ट्यून बजाते हुए. And in the midst of this, I hope you all had a glimpse of the air show as well. And much more is going to be on the offer as we will catch the microlight flying. That's the Uttar Pradesh Directorate, led by Senior Under Officer Ajay Singh, and placard held by Senior Under Officer Abhay Yadav. Among the martial tunes, the entire environment inspires patriotism, martial awakening, and valor. Uttarakhand Directorate, led by Senior Under Officer Akhil Unyal and the flag bearer Cadet Mayank Rawat. And now the West Bengal and Sikkim Directorate, led by Junior Under Officer Mohit Sharma and flag borne by Senior Under Officer Nuri Banu. युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का. नायब सूबेदार प्रवेंद्र सिंह के नेतृत्व में
सुरमई धुन। Well, that's parasailing in action for you as we see Sergeant Jatin getting airborne. And a round of applause here from the Prime Minister. बहुत छोटा है कदे आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं हौसलों की उड़ान रखता हूं। सार्जेंट जतिन क्षितिज से भी ऊंचे हौसलों के साथ, और इसके ठीक पीछे एक और पैरासेलर कैडेट राशि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है, और ये बेटी आज अपने हिस्से का सूरज खींच कर लाने के लिए तैयार। The parasailers are carrying the national flag. They are airborne right now. I am born to fly. Let me discover the limitless sky. I will spread my wings. I will learn how to fly. I will do what it takes to touch the sky. पक्षियों की तरह उड़ना देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मशक्कत। और ये कैडेट हिमांशु, तीसरे पैरासेलर, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। माननीय प्रधानमंत्री भी तालियां बजाकर अभिवादन करते हुए इन युवा योद्धाओं का। Well, as we saw Sergeant Jatin, Cadet Rashi, Cadet Himanshu, one wonders what a feeling it must be to be suddenly airborne, Colonel. जी हाँ, ये देखने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे कई घंटे की मेहनत, पसीना, आपको तीव्र हवा के गति के विपरीत दौड़ना पड़ता है। And people here in attendance have their cameras out to capture these beautiful moments as now we see the tableaus coming nearer to the saluting dais. थल सेना की झांकी। एनसीसी के तीनों विंगों में थल सेना के कैडेट्स की संख्या सबसे अधिक है। इसके अंतर्गत कैडेट्स को ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, फायरिंग, मैप रीडिंग, शारीरिक योग्यता आदि अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका वर्णन इस झांकी में किया जा रहा है। एनसीसी अपने कैडेट्स को सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति विश्व को झुका ही देता है। Well, cadets undergo training related to fieldcraft, battlecraft, and map reading. We've all learned maps in geography in our school, but when it comes to the armed forces and the cadets, even for the naval wing, map is an important tool. अगली झांकी नौसेना की झांकी, उन गतिविधियों का वर्णन जिसका प्रशिक्षण कैडेट एनसीसी में लेते हैं। Exposure is provided to the cadets to various facets of naval life like sailing, ship life, ship modeling and design. The sailing boat displayed on the tableau is the Enterprise class boat. And the air tableau after the naval tableau. So we can see the microlights flying in the formation they are creating. They are executing 3 aircraft formation. Tell us more about the microlight aircraft, Colonel. Amit, these are Zen microlights, small light plane which weighs around 430 kgs, ordinarily powered by a 450cc 4-cylinder engine, and it can fly at a speed of around 80 miles per hour. And the naval wing has been relying on this for the training of their cadets, and it can fly up to 14,000 feet. And we now have the tableau of social services and community development. Social services is so very important part of the cadet here at the NCC, whether it's the field of immunization, blood donation, yoga, Swachh Bharat Abhiyan, tree plantation, environmental conservation. These cadets have played a pivotal role. As we can see, the cadets watering the plants, spreading the eco-friendly message, and Prime Minister has always stressed that if it is not sustainable, it is not development. जी हाँ, सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कैडेट्स का।
Meanwhile, the microlight landing is also spectacular, and one of the defining moments in just a bit will be when one of the microlights will land and a cadet will come out with a message for all of us. Now, what will be that message? Wait and watch. अभी आपने देखा था 3 माइक्रोलाइट, उन्हीं में से एक अभी मैदान में उतरता हुआ। अगली झांकी एनसीसी के योगदान के बारे में। भीषण संघर्षों एवं चुनौतियों का वर्ष 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना के भय से आशंकित थी, एनसीसी के कैडेट्स ने इस वैश्विक महामारी में सेवा एवं समर्पण की नई इबारत लिखते हुए अभूतपूर्व कार्य किया। एनसीसी के महानिदेशालय द्वारा 1 अप्रैल 2020 को एक्सरसाइज योगदान का आगाज किया गया। देश के चारों कोनों में 1.5 लाख से भी ज्यादा कैडेट्स ने अपनी इच्छा एवं निस्वार्थ भाव से विभिन्न तरीके से योगदान किया। जैसा कि आप देख रहे हैं अमित, किस प्रकार कैडेट माननीय प्रधानमंत्री के सामने पेश करते हुए। So even as the microlight aircraft continues to land in the background, we see multiple things happening. Here we see young cadets dressed in the PPE and helping out create awareness among the people at large on the COVID. And now, under the leadership of Prime Minister Modi, as India has developed multiple vaccines, one would also rely on the NCC to help in awareness of the vaccination program as well. Whether it was distributing rations, manning COVID-19 helplines and data centers, NCC cadets have played a very important role. इसी बीच आप देखें अमित, किस प्रकार वो तीसरा माइक्रोलाइट मैदान में उतरता हुआ। Well, as far as microlight formation is concerned, today it was led by Wing Commander Mudaliar and Group Captain Vinod. One more aircraft was piloted by Wing Commander Narayan and Cadet Mansi Badoria. And the third aircraft was piloted by Wing Commander Grime and Group Captain Shiv Kumar. कोविड की विभिन्न गतिविधियां, अमूल्य योगदान। Here comes the third microlight, which has just landed. It has taken a U-turn and it is trying to come towards the dais. There is something in store for us as you see a cadet coming out of this microlight. And she's carrying a message. That's Cadet Mansi Badoria. Mansi Badoria running towards the Prime Minister. She has a message. Let us see what is in store for us this morning. It appears as if a message has come from the heaven. Here it goes. Rashtra Sarvapath Pratham, nation first. Our heart to love you, O motherland. One undivided soul, one hope, one purpose, one devotion towards a great divine goal. And this noble goal is nation first, always and every time. क्योंकि देश है तो हम हैं. Thank you very much for that message of nation first, as we now see the colorful dresses and the youth all set to present the cultural program, the vibrant colors of the Republic of India. Just the other day, we celebrated the 72nd Republic Day, and here we are, युवाओं का सपना, आत्मनिर्भर हो देश अपना. India, a cultural nation for thousands of years. करियप्पा परेड ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ. युवाओं का सपना, आत्मनिर्भर हो देश अपना, इसकी थीम पर रंगारंग कार्यक्रम. कैडेट अतुल्य भारत का प्रस्तुतिकरण भी करेंगे. नृत्य एवं संगीत हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. खुशी, सुख, दुख, प्रेम, डर सभी भावों को जाहिर करने का जरिया है. अनेक रूपों को जन्म देता है ये नृत्य, कभी आशा के रूप में, कभी कल्पनाओं के रूप में, तो कभी भावनाओं के रूप में. Malkham is an ancient Indian sport, and here are young cadets demonstrating the importance to boost immunity and concept of holistic fitness, good physical health, mental well-being, agility, balance.
मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मलखम का इतिहास छत्रपति शिवाजी के समय से है, जब उनके नौसैनिक इसका प्रयास करते थे अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम, विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जागा हुआ भारत है ये। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। हमने वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, हर दे हर दिल में खुशियों के रंग, तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते, कुछ कर दिखा। सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम, आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम। सर विच संभावना आंदा सानू है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला दुनिया नू पहला मिलिया, मशहूर इलाज दी दान है, दुनिया दे लई वरदान है, दुनिया नू असी ही सिखाया, वसुदेव कुटुंबकम। अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम, आत्मनिर्भर हाँ
महल हुनर दी पहचान है जाने जग जगदीश कोलों टूटे विच विता जान है रमन ने लहरा दिता रमन प्रभाव दा परचम आत्मनिर्भर हां असी वंदे मातरम अपने तो बेहतर असी वंदे मातरम स्वदेशी अपनान लगे विदेशी बजान लगे हो जाता है सिलसिला जो जनते पानी है मिलया यूएसबी भी असी दिता ना पुछो की है किता हर गोबिंद दे है नाज सानू ता डीएनए दा राज सानू देश दी स्वदेश दी है खोज पेंटियम आत्मनिर्भर हां असी वंदे मातरम अपने तो बेहतर असी वंदे मातरम आत्मनिर्भर हां असी वंदे मातरम अपने तो बेहतर असी वंदे मातरम अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे ये देश कबीर जवानों का वलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना ये योद्धाओं की भूमि है हम बेफिक्र चले सौगंध लिए इस माटी की हो बेनिडर चले नस नस में घोलता जज्बा है दिल में ये गीत है ये देश है वीर जवानों का अरवेलों का मस्तानों का यहाँ सदियों से ये रीत है जी हर डर के आगे जीत है जी डर के आगे जीत है डर के आगे जीत है डर के आगे जीत है तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन विश्व प्रेम की ओर चढ़ विश्व प्रेम की ओर जनरिया The Cariappa Parade Ground has filled up with the presence of the youth of the National Cadet Corps, symbolizing the merging of a gigantic wave, a wave of power, a wave of glory. These are the people who doers of deeds, the dreamers of dreams who make us believe. These are the people who still win the day when the odds are against them and the strength fades away.
These people are champions for they never given, a heartbeat within them that is destined to win. जब विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज लहराता है, हर जन जन का सीना गर्वित हो जाता है। जब दिखता आत्मनिर्भर भारत का अभिमान वहां, झुकता है देश के कदमों में आकाश यहां। जो डिजिटल इंडिया का विश्वास जगाने आया है, वोकल फॉर लोकल की लाग लगाने आया है, आतंक पर समझौता कभी न करता है। जो आंख उठाते सदियों तक अब डरता है, जहां शीर्ष नेतृत्व भी जन जन संग भारत के लिए प्रयासरत है। हर एक अकेला आज यहां शत शत है। यह उदीयमान भारत है, यह उदीयमान भारत है। अब समय है उन कैडेटों को पुरस्कृत करने का जिन्होंने कठिन परिश्रम एवं अपने प्रशंसनीय कार्यों से वर्ष 2020-21 में एनसीसी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। बहादुर तो खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, पुरस्कार वितरण। हम अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। बेस्ट कैडेट सीनियर विंग आर्मी, कॉर्पोरल मान्या एम कुमार, दिल्ली डायरेक्टरेट। गौरवशाली पल, देश का गौरव आज की बेटी। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन आर्मी, सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट। प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को प्रोत्साहित करता नेशनल कैडेट कोर। And from Army, let's now talk about Navy. The next award is Best Cadet Senior Wing Navy, being conferred to Naval Cadet Arpita Muralidharan from Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar Directorate, as she gets the medal cane from the Prime Minister. What a proud moment this is. Best Cadet Senior Division Navy, being conferred on Naval Cadet Anirudh S. Bhaskaran. Prime Minister Narendra Modi felicitating him with a medal, a cane, as we see Lieutenant General Tarun Kumar Aich, Director General NCC, motivating the youngsters. Best Cadet Senior Wing Air Force, Cadet Warrant Officer Kashish Methwani, महाराष्ट्र डायरेक्टरेट। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। हर मैदान फतेह। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन एयर फोर्स, कॉर्पोरल धीरज सिंह, गुजरात दमनदीप डायरेक्टरेट। And for the year 2020-2021, the runner-up Directorate Trophy, walking with great pride, Senior Under Officer Upkar Chandrakant Thakre, representing the Maharashtra Directorate. और अब वो क्षण आ चुका है, चैंपियंस डायरेक्टरेट ट्रॉफी और बैनर। इसका सौभाग्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना डायरेक्टरेट। पुरस्कार और ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सीनियर अंडर ऑफिसर एल थिरिशा, सीनियर अंडर ऑफिसर वी नागराजू। अत्यंत गौरवशाली पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो, तिनके तिनके को बना दो जिंदगी का आशियां। The cherished and the coveted Prime Minister banner, carrying the Ashoka emblem, and with the trophy. This is truly a great moment of delight and pride for the Andhra Pradesh and Telangana Directorate,
And now the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, will have a group photograph so that we can capture these moments for posterity. The audience in attendance, filled with pride to see the energy, enthusiasm of the cadets and appreciating their intense training. भारत के कोने कोने में फैले 17 निदेशालय, 700 से भी अधिक एनसीसी यूनिट्स अपने आदर्श वाक्य एकता एवं अनुशासन के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के मोर्चे पर मुस्तैदी से तैनात राष्ट्रीय कैडेट कोर गौरवशाली पल आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना डायरेक्टरेट के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित करते हुए The Honorable Prime Minister had expressed that the NCC experience is unique. Today we saw the cultural program and we see the myriad colors in the background, the formation of lotus, the lion, truly incredible India. Prime Minister emphasizes on Ek Bharat, Shresth Bharat, and by becoming part of the NCC platform, the young cadets get to know India better. The NCC offers a range of opportunities and learnings for our youth. NCC manifests India's diversity and the talent of our Yuva Shakti. And now we'll have the Honorable Prime Minister address the rally of the National Cadet Corps here at Karyappa Parade Ground, New Delhi. देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना, नौसेना और वायुसेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव, एनसीसी महानिर्देशक और देश भर से यहां जुटे राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत एनसीसी कैडेट्स, आप सभी युवा साथियों के बीच जितनी भी पल बिताने का मौका मिलता है, एक बहुत ही सुखद अनुभव देता है। अभी जो आपने यहां मार्च पास्ट किया, कुछ कैडेट्स ने पैरासेलिंग का हुनर दिखाया, जो ये सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ वो देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, आज टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते होंगे, हर किसी को गर्व महसूस होता होगा। देश के कोने कोने से आकर आपने 26 जनवरी की परेड में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपकी इस मेहनत को पूरी दुनिया ने देखा है। हम देखते हैं दुनिया में जिन भी देशों में समाज जीवन में अनुशासन होता है, ऐसे देश सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं। और भारत में समाज जीवन में अनुशासन लाने की ये बहुत अहम भूमिका एनसीसी बखूबी निभा सकती है। और आप में भी ये संस्कार जीवन पर्यंत रहना चाहिए। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की ये भावना आपके साथ रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे तो भारत का समाज इससे मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। साथियों,
दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप पर भरोसा और मजबूत होता है। शौर्य और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है। जहां संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान चल रहा है वहां भी एनसीसी कैडेट्स दिखते हैं। पर्यावरण को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है, जल संरक्षण या स्वच्छता से जुड़ा कोई अभियान हो तो वहां एनसीसी के कैडेट जरूर नजर आते हैं। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से संगठित तरीके से काम करते हैं उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है वो प्रशंसनीय है। हमारे संविधान में जिन नागरिक कर्तव्यों की बात कही गई है, जिनकी हमें से अपेक्षा की गई है, वो निभाना सभी का दायित्व है। हम सभी इसके साक्षी हैं कि जब सिविल सोसाइटी, स्थानीय नागरिक अपने कर्तव्यों पर बल देते हैं तब बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हल किया जा सकता है। जैसे आप भी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माओवाद कितनी बड़ी समस्या थी। देश के सैकड़ों जिले इससे प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कर्तव्य भाव और हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य साथ आया तो नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हो गई। अब देश के कुछ गिनती के जिलों में ही नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है, लेकिन अनेकों युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे हैं। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। अवसर चुनौतियों से निपटने का, विजयी बनने का, अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का, अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का, अवसर आत्मनिर्भर बनने का, अवसर साधारण से असाधारण, असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का।
इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की युवा शक्ति की भूमिका और युवा शक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी के भीतर भी मैं एक राष्ट्र सेवक के साथ ही एक राष्ट्र रक्षक भी देखता हूं। इसलिए सरकार ने विशेष प्रयास किया है कि एनसीसी की भूमिका उसका और विस्तार किए जाए। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैडेट्स का सिलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्र के हो या राज्य सरकार के हो, सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फायरिंग सिमुलेटर होता था। इसे अब बढ़ाकर 98 किया जा रहा है। करीब करीब 100, कहां 1 और कहां 100। माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर, उसको भी 5 से बढ़ाकर 44 और रोविंग सिमुलेटर को 11 से बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। ये आधुनिक सिमुलेटर्स एनसीसी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे। साथियों, ये आयोजन अभी जिस ग्राउंड पर हो रहा है उसका नाम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के नाम पर है। वो भी आपके लिए बड़ी प्रेरणा है। करियप्पा जी का जीवन शौर्य की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 में उनके रणनीतिक कौशल की वजह से भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से, आप एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप में से भी अनेक साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बने। आप सभी में वो सामर्थ्य भी है और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है। विशेष रूप से गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने सामने भी देख पा रहा हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को
आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। मुझे याद है, मैं जब कुछ 2-2.5 महीने पहले दिवाली पर जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर गया था, तो कई यंग ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी। देश की रक्षा के लिए उनका जज्बा, उनका हौसला, उनके चेहरे पर दिख रही अदम्य इच्छा शक्ति मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, लोंगेवाला पोस्ट का भी अपना एक गौरवमयी इतिहास है। सन 71 के युद्ध में लोंगेवाला में हमारे वीर जाबाजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जांबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था। सन 71 की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनी। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सभी जब दिल्ली आए हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल जाना बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। बल्कि इस गणतंत्र दिवस को तो हमारा जो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल है www.gallantryaward.gov.in उसको भी नए रंग रूप में रीलॉन्च किया गया है। इसमें परमवीर और महावीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सैनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारियां तो है। आप इस पोर्टल पर जाकर इनकी वीरता को नमन कर सकते हैं। और मेरा एनसीसी के वर्तमान और पूर्व सभी कैडेट से आग्रह है कि आपको इस पोर्टल पे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है कि जो एनसीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें अभी तक 20,000 से ज्यादा कैडेट जुड़ चुके हैं। इन कैडेट्स ने अपने अनुभव, अपने आइडियाज शेयर करना शुरू भी कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। साथियों, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के जिन मूल्यों को लेकर आप चले हैं, उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है। ये वर्ष
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती का भी है। जीवन में प्रेरणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आए, ऐसा कम ही होता है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने अपने पराक्रम से दुनिया की सबसे मजबूत सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आप नेताजी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके हौसले को डिगा सके। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ऐसे अनेक वीर आपको अपने सपनों का भारत बनाते हुए देखना चाहते हैं। और आपके जीवन के अगले 25-26 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये 25-26 साल भारत के लिए भी उतने ही अहम है। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब आपके आज के प्रयास भारत की इस यात्रा को मजबूती देंगे। यानी ये वर्ष एक कैडेट के रूप में और नागरिक के रूप में भी नए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए नए सपने लेकर के चल पड़ने का वर्ष है। बीते साल बड़े बड़े संकटों का जिस सामूहिक शक्ति से एक राष्ट्र, एक मन से हमने सामना किया, उसी भावना को हमें और सशक्त करना है। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं, उसको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद करना है। और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हमें पूरा करके दिखाना है। साथियों, बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। आज हम वैक्सीन के मामले में भी आत्मनिर्भर है और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन वॉर मशीन्स हैं। आपने आज मीडिया में भी देखा होगा, कल ही भारत में फ्रांस से 3 और रफाल फाइटर प्लेन आए हैं। भारत के इन फाइटर प्लेन से मिड एयर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है और इसमें ग्रीस और सऊदी अरब ने सहयोग किया है। ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते संबंधों की एक तस्वीर भी है। साथियों, अपनी सेनाओं की ज्यादातर जरूरतों को भारत में ही पूरा किया जा सके, इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं। 100 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजस फाइटर, हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आसमान तक अपना तेज फैला रहा है।
हाल में वायुसेना के लिए 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉरफेयर में भी भारत किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए हर जरूरी R&D पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट के बड़े मार्केट के बजाय एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाएगा। साथियों, आत्मनिर्भरता के अनेक लक्ष्यों को आज आप साकार होते हुए देख रहे हैं, तो आपके भीतर गर्व का एहसास होना बहुत स्वाभाविक है। आप भी जब अपने दोस्तों के बीच में लोकल के प्रति उत्साह अनुभव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ब्रांड्स को लेकर भारत के युवाओं की प्रेफरेंस में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब आप खादी को ही लीजिए। खादी को किसी जमाने में नेताओं के लिबास के रूप में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज वही खादी युवाओं की पसंदीदा ब्रांड बन चुका है। खादी के कुर्ते हो, खादी का जैकेट हो, खादी का दूसरा सामान हो, वो आज युवाओं के लिए फैशन का सिंबल बन चुका है। इसी तरह आज टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन हो या पैशन, त्योहार हो या शादी, लोकल के लिए हर भारतीय वोकल बनता जा रहा है। कोरोना के मुश्किल समय में भी भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स बने हैं और रिकॉर्ड यूनिकॉर्न देश के युवाओं ने तैयार किए हैं। साथियों, 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वासी युवा, ये इसकी पहली शर्त है, बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास फिटनेस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, स्किल और उचित अवसरों से आता है। आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इन्हीं पहलुओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा संस्थान तक, स्किल इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। आज फिटनेस और स्पोर्ट्स को भारत में अभूतपूर्व प्राथमिकता दी जा रही है। फिट इंडिया अभियान और खेलो इंडिया अभियान देश के गांव-गांव में बेहतर फिटनेस और बेहतर टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। फिट इंडिया अभियान और योग को प्रोत्साहन देने के लिए तो एनसीसी में भी विशेष कार्यक्रम चलते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को भी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है। अपने बच्चों को, युवा साथियों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा, अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्तर पर युवा टैलेंट के लिए, युवा उद्यमियों के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। आप इन अवसरों का जितना लाभ उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। हमें वयम राष्ट्र जागरयाम, इस वैदिक आह्वान को 21वीं सदी की युवा ऊर्जा का उद्घोष बनाना है। हमें इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इस भावना को आत्मसात करना है। हमें राष्ट्र हिताय राष्ट्र सुखाय च का संकल्प लेकर प्रत्येक देशवासी के लिए काम करना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और सर्वभूत हितेरता, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए हम बहुत आभारी हैं। हम विश्वास दिलाते हैं एनसीसी गान और राष्ट्रगान गाया जाएगा। राष्ट्रगान के बाद 3 बार भारत माता की जय पुकारी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ससम्मान खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहां यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके देश प्रेम तथा आत्मविश्वास में दुनिया के मानचित्र पर उभरता विश्व शक्ति सा हिंदुस्तान झलकता है, उनका हर शब्द युवा वर्ग के लिए अमूल्य उपहार है, एक प्रेरणा है। आज हर कैडेट कटिबद्ध देश की आन बान और शान में सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.